ہوا تھا. اللہ کہتا ہے جبریل یہ کافور والا گال مصطفیٰ کے تلووں پر لگا دینا, مصطفیٰ کے پیروں کے تلووں کو لگا دینا. جبریل کو اب سمجھ میں آیا کہ سارا جسم نور کا اور چہرہ کافور کا اللہ نے کیوں بنایا تھا. آج اس خدمت کے لیے اللہ نے بنایا. یہ جبریل کو معراج کی راز سمجھ میں آ گیا. لہذا کافور کو جو ہے گال مبارک کرنے کو لگایا گیا. حضور جاگ اٹھے. میرے آقا نے کہا, اللہ جبریل نے کہا اللہ محبوب ہے, آپ کو سلام کہتا ہے, اپنے پاس بلاتا ہے. واقعہ بڑا طویل ہے. جبریل نے ان کو جو ہے ان کے سینے کو چاک کیا ہمارے نبی کو. میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, جبریل نے میرے سینے کو چاک کیا, دل کو نکالا, آب زمزم سے دھویا, پھر دل کو رکھ دیا, پھر سینے کو چاک برابر کیا اور جنتی لباس بنایا, براق پر بٹھایا. براق پر بٹھا کر انہوں نے ہنی کے گھر سے یعنی حتیم سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے. مسجد اقصیٰ جانے کے بعد وہاں پر میں نے دیکھا سارے نبی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, سارے نبیوں کو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی, امامت کرائی اور سارے نبی میرے مقتدی بنے. بتانا یہ جانا تھا, معلوم یہ کرنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ تھا. اچھا ایک بات آپ مجھے اور بتائیے, نماز کے بارے میں آپ بار بار بیان میں آپ نے سنا ہوگا, نماز فرض کب ہوئی؟ نماز جب فرض ہوئی جب حضور معراج کو جا کر آئے. یہ نماز جو 5 دن کے ہم پڑھ رہے ہیں کب فرض ہوئی؟ جب حضور اللہ کا دیدار کر کر واپس آئے تو سرکار کو اللہ نے تحفہ دیا نماز کا, وہ نماز لے کر آئے. اس سے پہلے انہیں نماز تھی. یہ تو حضور معراج کو گئے جا کر نماز لے کر آئے, سمجھو گئے نا. لیکن آپ مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز پڑھائی. ابھی جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی حضور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا رہے, تو حضور کو کیسے علم آ گیا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضور کا استاد جبریل نہیں, اللہ ہے. الرحمن علم القرآن, اللہ رحمان وہ ہے جو اپنے مصطفیٰ کو سکھاتا ہے. اللہ کے بتانے سے حضور پہلے سے سب جانتے تھے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ ہر شے کا جاننے والا ہے, اور مصطفیٰ اللہ کے بتانے سے سب کچھ جانتے ہیں, اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. وہاں نماز پڑھانے کے بعد حضور پہلے آسمان, دوسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹویں, ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل کا آخری مقام تھا. اس کے آگے جبریل نے کہا حضور آپ یہاں سے آگے جائے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر میں ایک لمحہ بھی آپ کے ساتھ گیا تو میرا پر جل جائے گا, میں جل جاؤں گا. اللہ اللہ, جبریل کو یہ کہہ رہے ہیں, سارے فرشتوں کا سردار یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میری طرح نہیں ہیں اور میں آپ کی طرح نہیں ہوں. جب سارے فرشتوں کا سردار یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری طرح نہیں اور میں آپ کی طرح نہیں, تو آج کا وہابی, آج کا بد عقیدہ, یہ 2 ٹانگ کا جانور کس منہ سے کہتا ہے رسول اللہ تو ہماری طرح تھے, رسول پاک تو ہمارے طرح عام بشر تھے. میں کہتا ہوں یہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت ان کو سہا نہیں جاتی. کیوں سہا نہیں جاتی؟ میں نے معراج کے واقعے میں سنا کہ جمعہ ہے, ہر نیا آدمی آیا ہوا ہے. یہ وہابیوں کو ان کی ذہن گندی, ان کا ہر معاملہ گندا, ان کو حضور کی عظمت سہا نہیں جاتی. کیوں سہا نہیں جاتی میں آپ کو بتاتا ہوں. مغلیہ سلطنت میں ایک راجہ صاحب کی جہاں سے مترانی تھی جو تالک صاف کرنے والی, اس کا نام صفائی بیگم تھا. کیا نام تھا؟ صفائی بیگم. یہ ہوا حقیقت ہے. مغلیہ سلطنت, صفائی بیگم صفائی کرتی تھی اور بھی کہا کہ مترانی نے ٹوائلٹ کی. ایک بار اس کا بھائی دور گاؤں سے بہن سے ملنے آیا, دور سے بڑی مشکل سے راجا کے محل پہنچا. بہن نے کہا کہ بھائی اتنی دیر سے آئے, تھوڑا مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اپنے راجا کو کہہ کر سواری بٹھا دی. بڑے تھام کے سج کے آتے تھے, کیونکہ میں راجا کے ٹوائلٹ صاف کرنے والی صفائی بیگم ہوں تو میں بڑی عزت سے محل میں آیا جاتا. لہٰذا بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچے ہو اور حالت بھی کیسی ہے, لباس بھی کیسا ہے تمہارا. تو بھائی کہنے لگا بھائی کچھ بھی ہے, میں تجھ سے ملنے دل بولا آ گیا, ملنا دل بولا آ گیا. تو لہٰذا بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی ذرا راجا کا ٹوائلٹ صاف کر دیجیے. جہاں راجا صاحب جاتے ہیں وہ ٹوائلٹ کو صاف کر دیجیے, میں ابھی آتی ہوں. بھائی بولا چلے. جب گیا میں ٹوائلٹ میں اندر داخل ہوا تو چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے. عطر, کیونکہ راجاؤں کا کہتا ہے راجا تو بڑے بڑے مہنگے عطر استعمال کرتے تھے. ٹوائلٹ میں کیوڑا, ورجنل سندر کی خوشبو, اور خوشبو ایسی تھی کہ ابھی ہمیشہ گندگی صاف کرنے والا اچانک خوشبو کو سن کر بے ہوش ہو گیا. راجا کے ٹوائلٹ میں جب خوشبو سنا تو بے ہوش ہو گیا. اب بے ہوش ہو گیا, بڑے بڑے ڈاکٹر
की दवा सुखा रहा, ये होश में आ रहा फिर बेहोश हो जा रहा, होश में आ रहा फिर बेहोश हो जा रहा। बहन को मालूम है तो तुम्हारा भाई बेहोश होकर टॉयलेट में गिर गया, बहन आई देखा कि डॉक्टर साहब बड़ी कुछ होश में आने की दवा सुखा रही है, होश में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब को बहन ने कहा कि इसकी दवा का इलाज मेरे पास है। वो बाहर गई, बाहर से थोड़ी गंदगी उठाकर लाई, गंदगी उठाकर जैसा ही भाई के मुंह पे लगाना था होश आ गया। अब डॉक्टर बोला मैं इतना महंगा दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अरे ऐसी दवाएं मोटे भी जिंदा हो जाए, तेरा भाई होश में नहीं आया था। कहा देखो वो डॉक्टर साहब मेरा भाई हमेशा गंदगी में रहा, गंदे टॉयलेट साफ करा, उसको ये खुशबू बर्दाश्त कहाँ से हुई, इसलिए बेहोश हो गया। तो वहाबियों की मिसाल ऐसी है, इल्मे गैब हुजूर के लिए खुशबू है, हुजूर की अज़मत हुजूर की लिए खुशबू है। ये आशिकों को समझ में आता है, ये आशिकान रसूल को समझ में आता है, ये वहाबियों को कम समझ में आया। ये तो है ताले सफाई बेगम के भाई बने बैठे हैं, ये कभी ऐसी खुशबू सूंघे नहीं, इसलिए उनके सामने हुजूर के भाई उन्होंने तो हमारे भाई की तरह है, हमारे बड़े भाई की तरह है, उनको अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। बस समझ जाना ये सफाई बेगम के भाई है। अब आप समझ जाओ जितने वाबिया सफाई बेगम के भाई बने हैं, इनको खुशबू कहाँ समझ में आए, खुशबू तो आशिकों को समझ में आती है, खुशबू तो नूर वाले आका को नूर मानने वालों को समझ में आती है, अज़मत तो आशिकाने रसूल को समझ में आती है। तो सफाई बेगम के भाइयों तुम्हारे अकीदे में रहो, अल्लाह ने हमको जो अकीदा दिया है वो हमारे अकीदे पे हम रहेंगे और यही अकीदा पे रहेंगे। तो लिहाजा मैं जिब्रील भी अकीदा यही दे रहे हैं, क्या कह रहे जिब्रील, हुजूर मैं आपकी तरह नहीं और आप मेरी तरह नहीं, आगे अगर मैं जाऊंगा तो चल जाऊंगा, आप जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हुजूर गए कितने करीब गए और अदना का कुरान में नजर इधर रखे, सूरह नजम में कुरान में और अदना अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मेरा महबूब मेरे इतने करीब आया, इतने करीब आया कि दोनों कमान जैसे आपस में मिल जाते हैं, तीर का जो कमान होता है ना जब तीर छोड़ते हैं वो दो कमान आपस में मिला देते। और अरब में दो खानदान लड़ लेते और दोनों खानदान में अगर मोहब्बत हो जाती, सुलह हो जाती, बातचीत हो जाती, दोनों कमान आपस में मिला देते और तीर को छोड़ के कहते हैं कि देखो आज के बाद जो हमसे लड़ेगा, वो जो हमारे खानदान से लड़ेगा वो हमारा दुश्मन, हम दोनों की दुश्मनी खत्म कर दी, हम दोनों आपस में मिल गए हैं। कुरान इस मिसाल को मशवरा देते कहता है जैसा दो कमान आपस में मिलते हैं इस तरह मेरा महबूब मेरे इतने करीब हो गया, इतने करीब हुआ कि मैंने उसको इतने करीब किया। अब देखो ना मेरे मेराज की रात मैंने ये बात नहीं सुनाई, आखिरी बात सुनकर हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखना चाहते और अल्लाह ने कहा लन तरानी तुम नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की, अल्लाह ताला ने अपनी जात का नहीं अपनी सिफात का, जात और है सिफात और है, अल्लाह की सिफात रहीम अल्लाह है, अल्लाह रहीम है, ये रहीम होना उसकी सिफत है, सिफत कहते हैं खूबी को, ये अल्लाह की अपनी जाती खूबी है किसी ने दी नहीं। अल्लाह करीम है, अल्लाह की सिफत है, करीम होना अल्लाह की सिफत है, जात और सिफत और, तो अल्लाह की जात भी कदीम है, अल्लाह की सिफत भी कदीम है। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जितने नबी है ना, अल्लाह ताला ने इन तमाम नबियों को अपनी सिफत का जलवा बनाकर भेजा और हमारे नबी को अपनी जात का जलवा बनाकर भेजा है। पहले तो एक फर्ज है मेरे, हमारे नबी अल्लाह की जात के सिर्फ जलवा है तो और नबी अल्लाह की सिफात का जलवा है। पहली बात, अब अल्लाह ताला ने जब अपनी सिफात को जात को नहीं अपनी खूबी के एक पर्दे को हटाया, मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे ना अल्लाह की जात को देखे, कहा जात तो नहीं दे सकते, मेरी सिफत को मैं तुम्हें बताता हूँ, सिफत के एक पर्दे को सुई की नोक के बराबर, कितने सुई की नोक के बराबर एक पर्दे को हटाया तो बड़े दूर का जो पहाड़ था 40 या 45 किलोमीटर फैला हुआ पहाड़, आज भी देखे हम फलस्तीन में मिस्र में जाकर वो पहाड़ को, वो पहाड़ पूरा का पूरा चल गया। मेरे रब की सिफत का एक सुई की बारीक से नोक जलवा पहाड़ पर पड़ा, पहाड़ जल गया। उसी पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो बेहोश होकर गिर गए। आप तवज्जो करें, पहाड़ जल गया, नबी नहीं जले, नबी सिर्फ बेहोश हुए। उसी पहाड़ पर तो नबी भी खड़े हुए थे, अल्लाह की सिफत के जलवे से पहाड़ जल गया, नबी बेहोश हुए,
सिफत का जो जलवा उनके दिल पर पड़ा था ना, आंखों से जो रोशनी निकल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, उस रोशनी में तफसीर में आता है मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील, कितने 20 माइल, 20 किलोमीटर से भी ज्यादा, 28 किलोमीटर अंदाजा करें, 30 माइल मूसा अलैहिस्सलाम ने, अंधेरी रात थी, काला पहाड़ था, काले पहाड़ पे चोटी थी, अंदाजा करें चोटी भी काली, रात भी काली, पहाड़ तो काली, पहाड़ में कहाँ दिखेगा, वो भी 28 किलोमीटर दूर पहाड़ था, रात अंधेरी थी, पहाड़ काला, पहाड़ की चोटी काली, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को सिफत का जलवा उनके दिल पे असर किया था, आंखों में ऐसी रोशनी आ गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चुट्टी के पैर पर गिरने लग गए थे, नजर आ रहा था उनको। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों पे अल्लाह की सिफत का एक जलवा पड़ा तो उनको 28 मील दूर की पहाड़ पर काली चुट्टी के पैर नजर आ गए। जो सिफत के सुई की नोक को देखा तो उसके देखने का ये आलम है, और जिसने अल्लाह की जात का दीदार किया तो उसके देखने का आलम क्या होगा। रसूल से कोई चीज क्या छुप सकती है। आला हज़रत इसलिए कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा आका मिराज की रात वापस आए, दोज़ख का भी मैना किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा दोज़ख में आग की रस्सी है, उस पर कुछ बंदों को लटकाया गया है। आग की रस्सी में दोज़ख की आग, दोज़ख की आग का अंदाजा है आपको। जो दुनिया में आग है ना, दोज़ख की आग से कई मील, जब इस आग को लाया गया दोज़ख में से, अब दुनिया में आग भेजा गया, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, पकवान की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील दोज़ख में से थोड़ा सा हिस्सा जो आग का और दुनिया में पहुंचाओ। जिब्रील ने दोज़ख में से सुई की नोक के इतना हिस्सा लिया आग का और उसको 70,000 मरतबा पानी से धोया। कितने हजार मरतबा? 70,000 मरतबा धोने के बाद जब लाकर दुनिया में रखा तो पहाड़ जलकर भस्म हो गया। दोज़ख की आग को अंदाजा करिए आप कि दोज़ख की आग का छोटा सा हिस्सा 70,000 बार पानी से धोने के बाद दोज़ख के जमीन पे रखा गया तो भस्म हो गया पहाड़। उस पहाड़ से जो थोड़ी को रोशनी निकली उससे आग बनी है दुनिया में। तब दोज़ख की आग का अंदाजा करें। दोज़ख की आग पर, आग की रस्सियों पे कुछ लोग लटके हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ये कौन है जिनको अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग की रस्सियों में लटका कर रखा है। या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत के वो लोग होंगे जो दुनिया में बाहर चबूतरों पर बैठ जाएंगे और उनके सामने से जो भी जाएगा तो इशारे में कहेंगे गाली देकर, देखो ले जा रहा। नौजवानों ऐसा हो रहा है आज। अगर कोई आपके सामने से मोहल्ले का शरीफ आदमी जाए या इमाम साहब जाए, नेक आदमी जाए या कोई भी जाए, आप इशारे के देखने जा, आप गाली देते हैं इसके पीठ पीछे या इशारा कर रहे उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसों के लिए अल्लाह ऐसा आजाब दोज़ख में तैयार कर रखा है। आप अंदाजा अगर कोई बैठेगा चबूतरों पर बैठकर किसी का मजाक, किसी की ग़ीबत या किसी को इशारे से भी, अगर कोई नौजवान आपका वक्त गुजार रहे, रातों रात भर चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजार रहे, थोड़ी देर के लिए उनको सोचना है मौत है, उसके बाद ये तमाम चीजें हैं। किसी का मजाक चबूतरों पर बैठ कर उड़ाने वालों, आखिर क्या सोचो कि दोज़ख की आग में तुम्हें आग की रस्सी से लटकाया जाएगा, आग की रस्सी से लटकाया जाएगा। बेशुमार अज़ाबात दोज़ख में बताए गए। एक सरकार ने देखा कि कुछ लोगों के सरों को फरिश्ते कुचल रहे हैं, फिर सर सीधे हो रहे हैं, फिर कुचल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील ये सजा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह ये बेनमाजी है, इनको यही सजा मिलते रहेगी। फिर आगे देखा कि कुछ औरतें, कुछ अदमियां हैं, उनके सामने अच्छा पाक और सुथरा गोश्त है और दूसरे सड़ा गला हुआ गोश्त है, वो पाक और सुथरे गोश्त को नहीं खा रहे, सड़ा और गला हुआ गोश्त को खा रहे। और आगे देखा कि आज दोज़ख में एक आग की बौड़ी है। कई की बौड़ी?